Good morning, dear students of class 9th and 10th of Prakash Public School. Once again, I welcome you all in the online class of Information Technology. I want to tell you that till now, we have covered one unit, that was communication skills. In communication skills, we have covered 4 sessions. First was methods of communications. Session 2 was communication cycle. Session 4 we covered, after that we covered third. So session third was communication barriers, and session 4 effective communication. Now in this unit of communication skills, fifth session is basic writing skills. But basic writing skills actually deals with all the skills of writing in English. It is related to grammar, it is related to paragraph making, it is related to sentence making, it is related to use of all these modals, articles and everything. I think all these things you have already done in English. So whenever we will be meeting in our classes, I hope that the things will be positive soon, and we will meet sometime uh, after now in our regular classes. So then we can discuss the things which are there in session 5, which is basic writing skills. Today we are starting unit 2. That is very important to all our students, to everyone who is studying, who is teaching. That is related to self-management skills. Unit 2 is self-management skill. Self-management means how you manage yourself as a teacher, as an employee, as a student. So everybody who is living has to manage his life or manage himself. हम कोई भी काम करते हैं, हम टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, हमें अपनी वर्किंग को, अपने तरीके को, पढ़ने को, पढ़ाने को, सभी को मैनेज करना पड़ता है, और इसी से रिलेटेड है हमारा यूनिट 2, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. As you can see on your screen, that is first session is stress management and its techniques. You know very well stress management. What is this stress? I hope everybody of you have listened to this word, stress management. Stress management क्या होता है? अभी हमारा CBSE का 10वीं और 12वीं का यानी कि 10th और 12th का रिज़ल्ट आया. उस रिज़ल्ट को देखने के बाद, मार्क्स देखने के बाद कुछ बच्चे बहुत खुश हुए होंगे, बहुत अच्छा फील किया होगा, और बहुत से बच्चे ऐसा होगा जो मान के चल रहे होंगे हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, लेकिन मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए. तो वो अपने आप को एक दबाव में महसूस करते हैं, अपने आप को एक परेशानी में, चिंता में महसूस करते हैं कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हम आगे क्या करेंगे, हमारे फ्यूचर का क्या होगा. तो ये है आज की दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस जो स्टूडेंट्स के लिए है. इसी तरीके से वर्किंग पीपल के लिए भी बहुत स्ट्रेस होते हैं कि मैं अपना काम कैसे करूँगा. आज के आप देख रहे हैं कोरोना का टाइम चल रहा है, सभी अपने घरों में बैठकर काम कर रहे हैं, तो इससे भी एक स्ट्रेस पैदा हो रहा है. तो ये सब चीज़ें हैं जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, और हम सीखेंगे इस चैप्टर के थ्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए और इसकी टेक्निक्स क्या हैं. ये चैप्टर मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाने वाला हूँ, और नॉर्मल लाइफ में भी और एजुकेशन के लिए, चैप्टर के लिए भी. ये चैप्टर आपके लिए समझना स्टडीज़ के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन लाइफ के लिए भी ज़रूरी है. In your life, when you will be going to face 12th class or 10th class papers and all these things, you will be feeling all the things what we are going to discuss in this chapter. जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो आप कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर फेस करने वाले हैं. प्लीज़ गो थ्रू दिस चैप्टर very seriously, and if you have not got the books, please get the book soon, so that the things can be understood very effectively and easily.
So we are starting this chapter, stress management and its techniques, session 1 of unit 2. Before I'm reading it from your screen only, and let me tell you that I am not going to send these pics of chapter to class 10th, because in my last video I have told you that in future I will not be able to send pics to the students because it creates problems for me and everybody. Thank you. Now we start with it. Before we discuss stress management, let us understand what causes stress. Stress होता कैसे है? Chapter is very easy. Life is a chain of events. Life जो है वो चेन है, इवेंट्स की घटनाएं होती रहती हैं, मार्क्ड बाय पेन, लेकिन उनमें कभी पेन मिलती है, एंग्जाइटी, चिंता होती है, अनमेट एक्सपेक्टेशंस, कई बार पूरी ना हो पाने वाली आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, फेलियर्स होती हैं, फेलियर्स हमें फील करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं, फियर होता है, डर होता है, और एंटिसिपेशन ऑफ लॉस, और एक सबसे बड़ा लॉस का डर होता है, हम ये मान के चलते हैं कि शायद ये मैं खो ना दूँ. The endless greed for materialistic pleasures, achieving our goals, pressure from the society or bitter past experience create a chaotic atmosphere in our lives. All this leads to a state of emotional disturbance widely known as stress. ये पैराग्राफ मैं आपको बता दूँ, द एंडलेस ग्रीड ऑफ मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, जो हम खुशियाँ ढूंढते हैं भौतिक ज़िंदगी में, पैसे की, मकान की, ये सब खुशियाँ जो होती हैं, वो हमारे जो लालच होता है इन खुशियों का, वो अचीविंग आवर गोल्स, अपनी जो गोल्स हैं उनको प्राप्त करने का प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी, जो सोशल सोसाइटी की तरफ से जो प्रेशर होता है कि ये अच्छा कर पाएगा या नहीं, और बिटर पास्ट एक्सपीरियंस, और जो पास्ट के कड़वे अनुभव होते हैं. मान लीजिए आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो ये कई बार बच्चे लेके चलते हैं कि ये मेरा एक बहुत बिटर एक्सपीरियंस है लाइफ का. इट क्रिएटेड chaotic एटमॉस्फेयर इन आवर लाइफ. ये कन्फ्यूज़न का एक माहौल हमारी ज़िंदगी में पैदा कर देता है, एक डिस्टर्बेंस का माहौल पैदा कर देता है. ऑल दिस लीड्स टू अ स्टेट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस, और इससे क्या होता है? मानसिक परेशानी, मानसिक तौर पर हम परेशान हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्बेंस. इसे ही हम स्ट्रेस कहते हैं. स्ट्रेस कैन बी व्यूड एज डिसीज दैट एफ्लिक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस ऑफ ग्रुप्स. ये सभी एज, मैंने आपको शुरू में बताया कि सभी एज के जो लोग होते हैं उन सबको ये प्रभावित कर सकता है. एफ्लिक्ट, प्रभावित करना. एडोलेसेंट्स यानी कि युवा, यूथ. एडोलेसेंट्स मीन्स जो बच्चे से बड़े हो रहे हैं, जो हमारी 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं. यूथ यानी कि युवा. एंड द एल्डरली या और बड़े लोग जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. इट ऑफन लीड्स टू एडिक्शन. जिसे स्ट्रेस हो जाता है, जो इस दबाव में आ जाता है, वो क्या करता है? इट लीड्स टू एडिक्शन. एडिक्शन मीन्स वो कई बार नशे में चला जाता है. लोनलीनेस मीन्स अकेलेपन में चला जाता है. एंड एंटी सोशल मैनरिज्म, कई बार वो कुछ असामाजिक कार्य करने शुरू कर देता है. मान लीजिए किसी का पैसे की इच्छा पूरी नहीं हुई, अच्छे मकान गाड़ी की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वो इस दबाव से निकलने के लिए, इस कमी से निकलने के लिए एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में लिप्त हो जाता है, इनमें शामिल हो जाता है. दैट गिव्स राइज टू वेरियस एलिमेंट्स. और ये क्या होता है? इससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, सच एज हेडेक, नोजिया एंड डिग्रेडेशन ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़. कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होता है हमारी ज्ञान, हमारे दिमागी तौर पर हमें अक्षम कर देती हैं वो प्रॉब्लम्स, ये एलिमेंट्स, ये बीमारियां. और विच कैन बी सेल्फ इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल. कई बार ये हमारी अपनी कमी से पैदा की हुई होती हैं, और कई बार ये बाहर से हमें सोसाइटी की तरफ से या किसी प्रेशर की वजह से हमें मिल जाती हैं. कई बार हम ही अपने स्वभाव की वजह से, या अपनी थिंकिंग पावर की वजह से, या अपनी नेगेटिव थिंकिंग पावर कहना चाहिए, उसकी वजह से हम इन्हें अपने आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं कई बार इन प्रॉब्लम्स को, और कई बार ये एक्सटर्नल होती हैं. सम फैक्टर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस आर. जो चीज़ें स्ट्रेस को बढ़ाती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? थ्रेट. अगर आपको किसी से डर लगे, किसी की धमकी हो, तो आप इसमें आ सकते हैं. डेंजरस सिचुएशंस, कुछ खतरनाक सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आ जाती हैं जिससे आप प्रेशर में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं. इरैशनल डिमांड्स. इरैशनल मीन्स कुछ ऐसी डिमांड्स जो इरैशनल हैं, जो पूरी हो ही नहीं सकती, और हम उस डिमांड्स को लेके सोचते रहें अपने मन में, तो हम उससे स्ट्रेस में चले जाते हैं. सोसाइटल और पीयर प्रेशर. सोसाइटल मीन्स जो सोसाइटी की तरफ से प्रेशर हो सकता है. पीयर प्रेशर का मतलब होता है जो हमारे फ्रेंड्स की तरफ से हो सकता है, कि हम फ्रेंड्स को देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन उतना आगे नहीं बढ़ पाते और प्रेशर में आ जाते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स, कई बार ऐसा होता है हम अपनी क्षमताओं से बहुत आगे की इच्छाएं कर लेते हैं और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम प्रेशर में आ जाते हैं। इसके बाद आता है एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत ज़्यादा उम्मीद जब हम अपने आप से लगा लेते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। बैड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हो सकता है हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हम दबाव में रहें। फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉस जो होता है जब कोई ऐसा आर्थिक नुकसान, पैसे का नुकसान, बिजनेस का नुकसान, नौकरी का नुकसान, कुछ ऐसा नुकसान हो जाए तो हम स्ट्रेस में आ सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। आप किसी भेदभाव की वजह से भी आ सकते हैं कि ये जॉब मुझे नहीं मिली क्योंकि ऐसा भेदभाव हो रहा है, और आप ये सोचते रहें और या कोई ऐसा इस तरीके का आपको लगे तो आप प्रेशर में आ सकते हैं। देन वी कम टू एवरी पर्सन गोज थ्रू अ स्ट्रेसफुल फेज, ये सभी जो लोग हैं वो कभी ना कभी एक स्ट्रेसफुल फेज से निकलते हैं। देयर इज हेंस ए नीड टू मैनेज स्ट्रेस इन ऑर्डर टू लिव अ हेल्दी लाइफ, इसलिए हर एक की ज़िंदगी में ज़रूरत है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, एक हेल्दी लाइफ को जीने के लिए। वन नीड्स टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर्स that directly have an adverse effect on the physical, emotional, behavioral और mental health of a human being। तो क्या होना चाहिए? One needs to identify the stressors। स्ट्रेसर्स किसे कहते हैं? जो चीज़ें हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं, ये 5-6 तरह की, जो यह है थ्रेट, डेंजरस सिचुएशन, इरेशनल डिमांड, सोशल सोसाइटल पीयर प्रेशर, अनरियलिस्टिक गोल्स, एक्सपेक्टेशंस, बैड, ये सभी क्या हैं? स्ट्रेसर्स हैं। तो जो चीज़ें स्ट्रेस को बढ़ावा देती हैं उन्हें हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। वन नीड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर्स दैट डायरेक्टली हैव एन एडवर्स इफेक्ट, जो हमारी ज़िंदगी पर एडवर्स मीन्स ऑपोजिट इफेक्ट डालते हैं, बुरा इफेक्ट डालते हैं, उनको हमें पहचानने की ज़रूरत है। ये इमोशनल हो सकते हैं, बिहेवियरल हो सकते हैं। इमोशनल मीन्स हमारे मन संबंधी हो सकते हैं, हमारी भावनाओं संबंधित हो सकते हैं। बिहेवियरल मीन्स हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं और एक इंसान के दिमाग को। इन्हें हमें पहचानना चाहिए। स्ट्रेस डज नॉट ऑलवेज हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। अब एक और चीज़ है कि स्ट्रेस का कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इट कैन समटाइम्स बी यूजफुल एंड हेल्प अस टू अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स। कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रेस में आते हैं लेकिन हम उसका स्ट्रेस में आने के बाद हम कुछ ऐसा कर जाते हैं लाइफ में कि हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते थे। इसे हम थोड़ा आगे ध्यान से पढ़ते हैं। ग्रेट थिंग्स, फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, सम चैलेंजेस आर डिफ़िकल्ट टू फेस। लाइफ में हमें ऐसा लगता है कि ये चैलेंज मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल है, एंड कॉजेज स्ट्रेस, लेकिन और वो स्ट्रेस पैदा करता है। एंड येट दे हेल्प अस टू पुश आवर लिमिट्स, लेकिन वो स्ट्रेस क्या करता है? हमारी लिमिट्स को, हमारी जो पावर को, हमारे एक एबिलिटीज़ को बढ़ा देता है, वो स्ट्रेस बढ़ा देता है। दिस इज़ नोन एज ईओ स्ट्रेस। इसे कहते हैं, जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए ताकत देता है, उसे एओ स्ट्रेस कहते हैं। एओ स्ट्रेस प्रोवाइड्स अस विद एनर्जी एंड मोटिवेशन टू अचीव आवर गोल्स। कई बार ऐसे लगता है कि हम नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हम स्ट्रेस में आए तो हमने कोशिश की और हम उस चीज़ को कंप्लीट कर गए। ये हमें मोटिवेशन और एनर्जी, जो एओ स्ट्रेस है वो हमें मोटिवेशन यानी कि आगे बढ़ने की ताकत और हमें एनर्जी प्रदान करता है टू अचीव आवर गोल्स। सपोज ए चाइल्ड, एक एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज ए चाइल्ड टुक अ टेस्ट एंड परफॉर्म्ड वेल। टू अचीव दिस रिजल्ट ही माइट हैव प्लान्ड हिज शेड्यूल, प्रायोरिटाइज्ड हिज एक्टिविटीज़। जो प्रायोरिटी थी उनको थोड़ा सेटल किया कि क्या चीज़ पहले करनी चाहिए, क्या बाद में करनी चाहिए। सेटअप एट डेली रूटीन, और एक डेली रूटीन सेटअप किया। द सिचुएशन वाज अ बिट स्ट्रेसफुल बट द चाइल्ड मैनेज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस बाय प्लानिंग वेल। अब उस चाइल्ड ने क्या किया? इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो प्लानिंग की, उस प्लानिंग ने उसको हेल्प किया और उसने सक्सेस अचीव कर लिया। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस और इट इज़ कॉल्ड एओ स्ट्रेस। लेवल्स ऑफ स्ट्रेस वेरी अकॉर्डिंगली, ये अलग अलग होता है सब लोगों के लिए। लेवल्स ऑफ stress vary accordingly to an individual's way of
परसीविंग इट, कैसा कोई इस स्ट्रेस को लेके चलता है ये उस पर डिपेंड करता है। कोई उसे पॉजिटिव लेता है, कोई उसको नेगेटिव लेता है और अपने आप को परेशान रखता है। ईच पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू वेरियस सिचुएशंस डिफरेंटली। हर पर्सन जो होता है वो अपने अपने स्वभाव, अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से हर सिचुएशन को अपने तरीके से डील करता है। Have you ever noticed that some people tend to get easily stressed about an event or a result while others appear less concerned? आपने कई बार महसूस किया होगा, देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी किसी दबाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं किसी भी इवेंट के या किसी भी रिजल्ट के, और कुछ लोग होते हैं वो इसके बारे में बहुत कम चिंतित होते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसली उसे नहीं लेते। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 3 स्टूडेंट्स स्कोर्ड पुअर ग्रेड्स इन अ टेस्ट। 3 बच्चों ने एक टेस्ट में कम मार्क्स लिए। नाउ ऑल 3 माइट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द सिचुएशन। अब जो तीनों बच्चे हैं, तीनों स्टूडेंट हैं, वो अलग अलग तरीके से इससे डील कर सकते हैं। वन ऑफ देम माइट हैव अ केयर फ्री एटीट्यूड। एक है उनमें से जो कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगला पेपर होगा मैं अच्छे मार्क्स ले लूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं, अब आ गए तो आ गए, क्या कर सकते हैं, वो ऐसे सोच सकता है। द अदर में बी अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। जो दूसरा है वो थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन परेशान भी इतना नहीं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा वो चिंता में डाल दे। लेकिन जो थर्ड है, एंड द थर्ड वन माइट फील फ्राइटेंड बाय द रिजल्ट। अब तीसरा है वो इतना डर जाता है, दिमागी तौर पर मन में इतना डर ले लेता है कि ये क्या हो गया। ही मे ब्लेम हिमसेल्फ। वो अपने आप को ब्लेम करता है कि मुझे नहीं ऐसा होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो अपने आप को कोस रहा है। एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विद द सिचुएशन। और वो बहुत मुश्किल से अपने आप को डील कर पाता है सिचुएशन से। उसको ऐसा लगता है कि मैं इस सिचुएशन से डील ही नहीं कर पाऊंगा, या ये ऐसा क्यों हो गया मेरी लाइफ में। वो इतना उसे सीरियसली ले रहा है उसी एक प्रॉब्लम को। नॉट द स्ट्रेस लेवल वर नॉट द सेम फॉर द 3 स्टूडेंट्स। अब आप समझ सकते हैं कि तीनों स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस लेवल को कॉप अप करने का, उसको एक्सेप्ट करने का तरीका बहुत अलग अलग है। Not the stress level were not the same for the 3 students, and the third students might face some health issue due to his emotional approach. अब जो दोनों हैं पहले वाले, उन्होंने तो उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, तो उनके लिए इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट जो तीसरा है, जो तीसरा बच्चा है, वो हो सकता है अपने आप को बीमार कर ले, अपने आप को मानसिक तौर पर परेशान कर ले और बहुत ज़्यादा किसी बीमारी में पड़ जाए। For the sake of overall well-being, it is necessary to manage the negative emotions in a manner that does not lead to a decline in one's abilities or biological functionalities. अब इसमें जो बताया गया है for the sake of overall well-being, हम सबको अपनी अपनी सेहत के लिए कम से कम इतना करना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको मैनेज करना सीखना चाहिए, और ऐसा ना हो कि वो हमारी जो सेहत को, हमारी बायोलॉजिकल फंक्शनैलिटीज़ को, हमारी शारीरिक ताकत को, हमारी शारीरिक क्षमताओं को बहुत नीचे ले आए या उनमें कोई कमियां पैदा कर दे। इस तरीके से हमें उन नेगेटिव इमोशंस को मैनेज नहीं करना चाहिए, उनको पॉजिटिवली लेना चाहिए और उनको डील करना सीखना चाहिए। इसी डील करना सीखने को ही स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, यही हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब ये होता क्या है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता लग जाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ टेक्निक्स दैट एनेबल्स स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू अ वाइड range of techniques that enables a person to cope with psychological stress effectively. स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफ़र करते हैं, हम कहते हैं उस टेक्निक्स को, बहुत ज़्यादा फैली हुई बहुत बड़ी टेक्निक्स हैं जो एक पर्सन को इन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से, दबाव से लड़ने की, उनको डील करने की जो क्षमताएं पैदा करती है उसे ही स्ट्रेस मैनेजमेंट कहते हैं। इट कवर्स ऑल द टूल्स दैट मैकेनिज्म दैट एलिवेट क्रॉनिक स्ट्रेस। इट कवर्स ऑल द टूल्स, ये उन सभी यंत्रों को, उन सभी तरीक़ों को, मैकेनिज़्म को, उस टेक्निक को डील करती है जो कम करता है। एलिवेट मीन्स एलिविएट मीन्स डिक्रीज़ करना। क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक मीन्स जो बहुत भयानक स्ट्रेस होता है उसको कम करने की जो तकनीक को डील करती है। विच कुड अदरवाइज प्रूव टू बी अ लीथल डिसीज़,
जो हमारे लिए एक ड्रेडली मतलब एक जान लेने तक जैसी डिसीज़ बन सकती है, उसको कम करने का काम करता है। इट इंक्लूड्स अ पूल ऑफ टेक्निक्स, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स मिलकर काम करती है, दैट असिस्ट, जो सहायता करती हैं इंडिविजुअल्स एरेडिकेटिंग एनग्जाइटी, जो उसमें चिंता भर गई है उसको कम करती है, एरेडिकेट करती है, उसको ख़त्म करती है। एंड नेगेटिव थॉट्स, और जो उसमें नेगेटिव थॉट हैं उनको भी कम करती है। एंड वर्क ऑन देयर वेलबींग, और उस पर्सन की सेहत का ख्याल रखती है। इस सारी टेक्निक को, इस सारे मैकेनिज़्म को बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो यहाँ तक हम इस चैप्टर को कर पाएंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके हर पार्ट को हमें अच्छे से समझना है। और जो बाकी का हाफ पार्ट है आपको कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। उसमें जो आप देख रहे हैं आगे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। उस बाद उसमें दिया हुआ है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या हैं, कि कैसे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, हम जिस स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसी कंट्रोल को, स्ट्रेस को कंट्रोल करने को, कम करने को, उस नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव इम्पैक्ट में चेंज करने को, इसी को कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू वेरी मच. I hope you understood the topic. If you have any question, you can call me or you can send me a message. Everybody will be taking care of his health, his or her health, and his or her studies also. Please respond to the teachers whenever some question is given to you to solve it. Thank you very much. Take care of yourself. Thank you.